try to try to write down one liner facts, because apparently current affairs mein the thing that you need to realize is that what do you need when it comes to current affairs, that you need a good revision material, a material that even 5 days before the examination, 4 days before the examination, you're able to revise. So you just have to write down one liner facts, rest all information try to understand more. Very first news is that Election Commission of India has issued guidelines in favor of PWD, people with disability. Now, what are these guidelines precisely for? So, whatever political person or political parties, sometimes in political campaigning, अपनी speeches में अबे अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, terms like this should not be used, because Election Commission states that while you try to use these particular terms, you are acting against inclusivity. We want to be very inclusive for people with disability. They should not feel that there is some sort of deformity in them. That is why we don't use the word Viklang anymore. Now we use the word Divyang. Divyang. We don't use Viklang, we use Divyang. Also, there is one particular act. These people with disability, PWD people, have a statutory protection under PWD Act of 2016. Section 7 of this particular act provides rights, and you can say persons with disability को ये अधिकार स्वरूप उनको ये सुरक्षा देता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी कहा गया या उनके उनके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी की गई तो पनिशेबल ऑफेंस भी है. तो इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज को कहा है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करिए, ट्रेनिंग दीजिए, बताइए, समझाइए कि ह्यूमन इनकेपेसिटी बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें. और अगर ऐसा किया तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अंडर PWD एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट. पार्टीज कैसे इंश्योर करेंगी अपने कैंपेन मटेरियल्स, स्पीचेस और लीडर्स और सोशल मीडिया पोस्ट का एक इंटरनल रिव्यू प्रोसेस बनाएं. क्या बनाएं? एक इंटरनल रिव्यू प्रोसेस बनाएं. सेकंड, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो भी स्पीचेस और कैंपेन्स और जो भी इवेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेसिबल टू पब्लिक करें. एक्सेसिबल टू सिटीजन्स करने से होगा क्या? एक्सेसिबल टू सिटीजन्स करने से एक ही फ़ायदा होगा, सिटीजन्स पढ़ पाएंगे और आपकी गलतियों को बता पाएंगे. पार्टीज अपने वर्कर्स और को ट्रेन करना स्टार्ट करे और एक नोडल अथॉरिटी यानी एक इंस्पेक्शन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बिठाए जो कि कंप्लेंट्स को लेगा PWD की तरफ से जो आएंगी किस तरह की अब्लीस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. सेक्शन 92 में अगर आपने किसी भी तरीके से PWD के खिलाफ कुछ एट्रॉसिटीज़ करी तो उसकी पनिशमेंट है. ज़रा सेक्शन 92 को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. Whoever intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a person with disability in any place within a public view. किसी की बेइज्जती करना PWD वाले को, असॉल्ट करना या फोर्स यूज करना with intent to dishonor him or outrage the modesty of a woman with disability. Having the actual charge or control over a person with disability voluntarily or knowingly denies food or fluids to him or her. Being in a position to dominate the will of a child or a woman with disability uses that position to exploit her sexually. Voluntarily injures, damages, interferes with the use of any limb or sense or any supporting device of a person with disability. Injures, damages, or interferes. Performs, conducts, or directs any medical procedure to be performed on a woman with disability, which leads to likely to lead termination of pregnancy without her express consent, except in cases where medical procedure for termination of pregnancy is done in severe case of disability with the opinion of the registered medical practitioner and with also the consent of the guardian of the woman with disability, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine. यानी कि इसके अंदर भी सज़ा होगी और जनरली आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर तो सज़ा होती ही थी, वो भी होगी, साथ में आपको ये भी झेलना पड़ेगा.
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग प्रोविज़न है ये वाला। इसमें किसी भी महिला जो अब दिव्यांग महिला है, उसमें मिसकैरेज या प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराना, टर्मिनेशन कराना, अबॉर्शन कराना में उसकी सहमति चाहिए कि नहीं चाहिए, पहली बात तो ये इन्वॉल्व हो जाता है। सहमति चाहिए। द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ अ वुमन विद पीडब्ल्यूडी इज रिक्वायर्ड, but along with that it is also required that the doctors, the medical practitioners are also saying that there is no other choice than to terminate the pregnancy. And the third condition that is required is that the case should be very severe one. If not done properly, it can cause disability in the child. These three conditions have to be satisfied. If these three conditions are satisfied and the pregnancy is terminated, the punishment under this particular act is not attracted. But if any of these conditions is not fulfilled, only two or one condition is fulfilled, the other two are not, it you will be liable under this particular act and you shall be sentenced to imprisonment, which will be 6 months at least. How can I say 6 months at least? Because it is written shall not be less than 6 months, means that 6 महीना मिलेगा ही मिलेगा, 5 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन लगा देता है। समटाइम्स you are actually using criminal force, sometimes you are not, but in any case you are interfering with any aid, any limb which is supporting the person with disability. You are not allowing the person fluids or food. Only a PWD person has to file a complaint against you and you are done. Are you getting me? So this is the importance of section 92. Guidelines further said that political parties may endeavor to include more PWDs at the levels of members and workers. Review the material, all of this. But largely the intention is to align India with Convention on the Rights of Persons with Disability, CRPD. Convention on the Rights of Person with Disability is an international convention which protects people with disability. Now, please understand, are these guidelines mandatory with respect to addition of members? तो ध्यान से सुनिएगा. Election Commission of India has given guidelines to political parties. Are these guidelines mandatory to include PWD as members in parties? Yes or no? May endeavor like to make efforts, right? So Right. mandatory तो नहीं है. So you are saying it is not mandatory. No. Okay. Anybody else? भैया मे है तो फिर तो नो ही बोल सकते हैं, शैल होता तो मे बी यस। वेरी करेक्ट। एक्चुअली मैंने सवाल सीधे साफ पूछा था, पीडब्ल्यूडी के मेंबर्स को इंक्लूड कराने के लिए गाइडलाइन मैंडेटरी है क्या? बाकी सारी गाइडलाइन मैंडेटरी है, ये वाली गाइडलाइन मैंडेटरी नहीं है। मे एंडेवर मेंबर आप रखो कि नहीं रखो ये नहीं पता, ये चाहो तो रख सकते हो, लेकिन वो बेटर बेटर भी होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई अगर दिव्यांग काम कर रहा है तो आपके बाकी लोग उसको काम करते देखेंगे, तो एक फीलिंग ऑफ सेंसिटिविटी जनरेट हो सकती है उसके प्रति। जब उससे बात करें, उसको देखें, उसकी लाइफ को देखें कितनी चैलेंजिंग है, तो मे बी खुद ही सेंसिटाइज हो जाएं। तो ज़्यादा मेंबर्स रखना फ़ायदेमंद हो गई, लेकिन क्या है कि बेटर है कि आप उनको ट्रेनिंग दें कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। अब बात करें, Sir, what is the difference between this section 7 and section 92? सेक्शन 7 एंड सेक्शन 92, 92 में पनिशमेंट दिया है, सेक्शन 7 में उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। Like protection as in remedy kind of नहीं वैसा नहीं, कुछ? रेमेडी काइंड ऑफ नहीं, राइट इंश्योर कर रहा है दैट पीपल ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विल बी स्पेशली प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 7। दे हैव सर्टेन एंटाइटलमेंट्स एंड सर्टेन राइट्स।
तो और पीडब्ल्यूडी वो को राइट्स को लिस्ट डाउन कर दिया उन्होंने हाँ उसमें सेक्शन उस 7 सेक्शन में। में वो राइट्स एन्यूमरेट करे हैं जो पीडब्ल्यूडी के पास हैं। अगर इनके अगेंस्ट आप कोई एट्रॉसिटी करते हो तो सेक्शन 92 अट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग मी? एंड पीनल कोड में भी कोई ऐसा प्रोविजन है फिर इसके अलोंग नहीं, 92 पीनल के? कोड में पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है। जनरल ऑफेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, ये ऑफेंस है वहाँ पे। किसी को इंसल्ट करना, क्रिमिनली इंटिमिडेट करना आईपीसी में ऑफेंस है, राइट। किसी का खाना पानी दाना पानी रोकना ऑफेंस है। सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना अपने आप में ऑफेंस है। लेकिन जब बात पीडब्ल्यूडी की करें तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी। जैसे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली करे तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकता उसका। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई हस्बैंड भी है बीइंग इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमन, हस्बैंड है तो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग महिला का विल है उसको डोमिनेट कर सकता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल महिला, तो उसको उस जगह पे सज़ा हो सकती है। तो पीडब्ल्यूडी जो ऑफेंसेस है आईपीसी के वो जनरल हाईलाइटेड ऑफेंसेस हैं, आईपीसी में डिफाइंड है। लेकिन जब जब पीडब्ल्यूडी लग जाए, पीडब्ल्यूडी पर्सन हो, तो किस तरीके से उनका एप्लीकेशन चेंज हो जाता है थोड़ा सा वो यहाँ पे दिखाया है। आपको कंपेरेटिव एनालिसिस में नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लीगल लैंग्वेज बेयर एक्ट की कैसी होती है और हाउ टू सिंप्लीफाई है। जैसे सेक्शन 92 में क्या दिया है, कोई आपसे बोले कि किसी के साथ अगर गलत हुआ पीडब्ल्यूडी के साथ, किसी ने किसी को असॉल्ट किया या बैटरी किया या मारा या डराया, तो सेक्शन 7 के अंदर जाएंगे या सेक्शन 92 के अंदर जाएंगे, तो आप बोलेंगे सेक्शन 92 का लगेगा ना कि सेक्शन 7 लगेगा। सेक्शन 7 की वजह से सेक्शन 92 दिया है, बट सेक्शन 92 में पनिशमेंट्स हैं एग्जैक्ट। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसको कल्पेबिलिटी कहते हैं वो अंडर सेक्शन 92 स्टैब्लिश होगी, राइट। And ultimately, why Election Commission of India is largely coming into picture and not Ministry of Social Justice and Empowerment? Because it is a duty of the Election Commission to make sure that electoral process, the right to vote and the practice of voting and everything, has participation from all warring parties. Every section of the society should be there. So PWD are also one important segment or section of the society which largely are not involved in the democratic process, electoral process. So that is the whole sole intention. We are also trying to discuss about international convention here. So from international law, it becomes very important. There is this convention, CRPD, which was drafted in 2016, signed in 2007, enforced in 2008. So CRPD is largely of 2007 because it was signed and it was enforced in 2008, right? So now it is stated largely, कोई भी इंटरनेशनल लॉ अगर हमने बनाया, कोई भी हमने इंटरनेशनल लॉ बनाया, उसको हमने साइन कर दिया, क्या कर दिया, उसको हमने साइन कर दिया, तो उसको कहते हैं कि वी आर सिग्नेटरीज। लेकिन जब बात करें कि तो सिग्नेटरी और रैटिफाई कर देने में डिफरेंस क्या होता है, किसी कन्वेंशन को हमने साइन कर दिया तो हमारी पूरा इंटेंशन है कि हमें वो कन्वेंशन फॉलो करने की इच्छा है, वी वांट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन, वी वांट टू अबाइड बाय दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन। पर जब उसको रैटिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमने हमारे देश के अंदर एक डोमेस्टिक लॉ भी बना लिया है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो बहुत रिसेंट की है, 2016 की है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को साइन तो कर दिया था 2007 के टाइम पे, लेकिन उसको रैटिफाई 2016 के लॉ के बाद ही कर पाए हैं अपनी तरह से, राइट। इफेक्टिव और साइंड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव का मतलब ये हो जाता है कि अब आप लीगली बाउंड हैं, अब आपको एक्शन इस कन्वेंशन के हिसाब से लेना ही पड़ जाएगा। और सिर्फ साइंड जो होता है वो एक तरीके से मॉरल फोर्स का काम करता है, ना कि लीगल फोर्स का। तो साइन करने का मतलब कि हाँ ऐसा कन्वेंशन होना चाहिए, इफेक्टिव का सो सर मतलब ये बाउंड है। इफेक्टिव बनाता कौन है फिर उसको, लाइक द कंट्री और द? कंट्रीज का आपस का डिक्लेरेशन ही बनाता है। कंट्रीज ही जब उसको डिक्लेयर करती हैं कि वी आर नाउ रेडी टू एनफोर्स द ट्रीटी, राइट।
तो जब तक नेसेसिटी नहीं आ जाती है तब तक करते भी नहीं है, और पीडब्ल्यूडी के लिए तो क्या ही अर्जेंसी थी करने की, राइट? सो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी अबाउट कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ persons with disabilities? It is considered as the first human rights treaty of the 21st century. This is where the fact will come, question can come. Please remember, the first human rights treaty of the 21st century is Convention on the Rights of Persons with Disability. It's a treaty, which means United Nations and other countries are bound by it, right? Rights and dignity of the persons with disability. What are the expectations from the parties? So their parties are required to promote, protect, and ensure the full enjoyment of human rights by PWDs, and ensure that persons with disability enjoy full equality under law. These are the twofold objectives of this particular convention. So this particular convention is also seen as a major catalyst in global disability rights movement, enabling a shift from viewing persons with disability as objects of charity, medical treatment, and social protection towards viewing them as full and equal members of society with human rights. पहले कहते थे तुम दया की दृष्टि के पात्र हो, चैरिटी में तुम्हारे लिए दान दक्षिणा इकट्ठा किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए, समाज से तुमको बचाया जाए। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी डिग्निटी है, they are also equal members of the society. The convention is monitored by a committee on the rights of persons with disability for annual conferences of state parties to CRPD. So annual conferences होती हैं। इससे ज़्यादा इसके डेप्थ में जाने का ज़रूरत अभी आपको नहीं है। ये PDF जब आपको देंगे तो ये रीडिंग के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से है, 3.5 मिनट में आपको रीड करना है। So what I'm going to do is, in my mobile phone, I'm going to start the stopwatch, 3.5 minutes, and I'll be scrolling the screen and you have to read it, right? Are you ready for this? Yes, भैया. Yes, sir. So in 3.5 minutes, you have to read along, and after this, I'll ask oral questions as to just to understand what you actually did you read it, or you could understand it or not. Okay, so the time starts now.
टाइम्स अप। कितना हुआ, हो गया? Done. Yes. So हाँ भैया। so this was the readings. This is the actual reading speed you need to have in CLAT. Now you have read this particular passage and the ability to not to read it again and to be able to solve the questions. That is what you need for CLAT. This is a full length editorial of the Hindu, full length editorial of the Hindu, and this is what you have done in 3.5 minutes. Now, my question is that what are the two areas where author has stated that India is lagging when it comes to PWD? So political participation Political participation means Lack like of yeah, representation, हाँ, lack of, and lack of representation. representation में इसका क्या मतलब समझे, मतलब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? Like जैसे जो इनके political parties हैं, PWD के बारे में बात नहीं कर रही पार्टीज, ये मतलब है? ये भी है, एंड फिर पार्टीज इंक्लूड भी नहीं करी मेंबर्स, और पार्लियामेंट में भी उनका रिप्रेजेंटेशन वैसे भी कम है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनके जो इश्यूज हैं वो रख भी नहीं पा रहे हैं अपना वो सब। पार्टिसिपेशन कम है उनके या उनके वर्क से तो मोस्टली। लाइक बेसिकली जब पार्टिसिपेशन कम है तो कहीं ना कहीं सभी कुछ कमी हो रहा है फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो बड़ा कॉमन सा नैरेटिव आया कि जो पार्टीज हैं वो PWD मेंबर्स को लेती नहीं है, तो उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, और सर दूसरा ये है उनको कि वोटिंग इनएक्सेसिबिलिटी एक फेस करनी पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वोटिंग इन एक्सेसिबिलिटी, वेरी गुड। मतलब कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी को पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनना पड़े। वो जो लोग हैं PWD वाले, वो वोट भी देना चाहते हैं, तो वोटिंग इंफ्रा उनके लिए एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता है। बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पे अंधों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए ब्रेल लैंग्वेज होनी चाहिए मशीन में। ईवीएम मशीन में ब्रेल लैंग्वेज नहीं है जिसको छू के वो अपना वोट कास्ट कर पाए, यानी कि इनको सरकार पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ नहीं ले रही है। वेरी गुड। क्या सोल्यूशन ऑथर ने सजेस्ट किया है? ऑथर कैसा सोल्यूशन निकाल के देता है अपने को? ऑथर एक सोल्यूशन निकाल के नहीं देता है। ऑथर मल्टीपल एरियाज पे अपने को प्रिंसिपल्स निकालने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो इंश्योर गोल्स और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से ये बताता है कि इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमिटमेंट जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। कैसे? इंक्लूजन ऑफ द डिसेबल्ड को करके। दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत देता है कि चुनाव के दौरान आप ब्रेल और लैंग्वेज डिसेबल्ड पीपल स्टिल रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करने की कोशिश करिए। ठीक है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को सजेशन देता है कि वो क्या करें, लार्ज इलेक्टोरेट बेस जो है उसमें डिसेबल्ड को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करें, लेके चलें। राइट। चौथा सजेशन देता है कि आप डेटा का जो एग्रीगेशन है वो करना शुरू करिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, उनके लैक ऑफ एक्सेसिबल स्पेस को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और उनके लिए प्रॉपर मीटिंग, ट्रांसपोर्ट, कैंपेनिंग और एटीट्यूडनल बैरियर अमंग वोटर्स, बिहेवियरल पैटर्न दूसरे वोटर्स का भी चेंज करिए उनके प्रति। इस तरह की चीज़ों को पहले तो हाईलाइट करता है और फिर सजेशन के रूप में भी हमारे सामने रखता है। कहता है कि रिप्रेजेंटेशन जब तब तक नहीं होगा तब तक PWD के लोगों की बात कोई आगे सुनेगा नहीं, सेंसिटिव होगा नहीं, और वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड ही बनी रहेगी। हमने SC ST और उन लोग को तो लेजिस्लेचर में आरक्षण दे दिया है, पर PWD को अभी भी हम किसी भी तरह का आरक्षण लेजिस्लेचर में सीट्स के रूप में देते हुए नहीं दिखाई देते। और लास्ट में सोल्यूशन देता है कि सिर्फ लोकसभा और चुनाव ही क्यों, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पंचायत से लेके राज्यसभा तक।
जिसमें अब हमारे सामने लास्ट में जीके के 2 फैक्ट्स बताता है। कहता है इस भारत के पार्लियामेंट के सबसे पहले विजुअली डिसेबल्ड मेंबर का नाम है साधन गुप्ता। आंखों का साधन, विजुअली डिसेबल्ड, साधन गुप्ता, ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा हमें बताता है कि छत्तीसगढ़ ने पंचायत में यह इंश्योर किया है कि अगर मान लीजिए किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को कोई निर्वाचित ना किया जाए, इफ ही इज नॉट इलेक्टेड, देन व्हाट हैपेंस, ही इज मेड अ मेंबर ऑफ पंचायत एज अ नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेट कर देते हैं उसको। अगर डिसेबल्ड इलेक्ट पर्सन चुनाव नहीं जीत पाता है तो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। ऑथर दोनों तरफ हमें बल देते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर रिजर्वेशन दे सकते हैं तो रिजर्वेशन दे दीजिए, वरना नॉमिनेशन जैसे पंचायत में छत्तीसगढ़ कर रहा है वैसा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इंक्लूसिवनेस और एम्पावरमेंट पॉलिटिकल इंक्लूजन की जगह पे नहीं है। बार बार आपको ऑथर एक ही तरफ एम्फासिस करते हुए दिखाई देगा कि पॉलिटिकल इंक्लूजन प्लस रिमूवल ऑफ बैरियर्स, प्लस रिमूवल ऑफ बैरियर्स इन पार्टिसिपेटिंग और in being a part of elections is the main way out. So that is where the gist and the conclusion lies. So always do these activities with your editorials, with the articles that you read. Stopwatch मारा, 3-4 मिनट के अंदर उसको बहुत ईमानदारी से तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करी। आंखें बंद करिए, रिमाइंड करने की कोशिश करिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी, और फिर सेकेंड टाइम पे उसको बहुत स्लोली खुद को समझाते हुए रीड करिए। नेचुरली आपका जो एबिलिटी है टू रीड मोर, रिमेंबर मोर एंड कॉम्प्रीहेंड फास्ट डेवलप होने लग जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दूध पीते बच्चे नहीं हो छोटे कि तुम लोग को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे बुलवाया जाए, ऐसे करवाया जाए। तुम्हें ईमानदारी से ये प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा, ऐसे ही सुधरती है इंग्लिश रीडिंग की स्पीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि लोकसभा हैज़ रिप्लेस्ड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया, इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा लोग टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं क्रिमिनल बिल्स के बारे में। लेकिन ये एक ऐसा प्रेस और रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट है जो ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा जाता है। पहले क्या था कि कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंटिंग प्रेस ओन करते हो, अगर आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, आप पैम्फलेट छापते हो, आप किताब छापते हो, आप कुछ भी करते हो, आप कॉपियाँ ही बनाते हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती थी। जिलाधिकारी ने अगर आपको परमिशन नहीं दी है तब भी आप प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हो तो प्रिंटिंग प्रेस आपका सीज हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती थी। लेकिन आप इस पर्टिकुलर एक्ट का ज़रा जब ईयर फोकस करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि 1857 की क्रांति के बाद 10 साल बाद प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ब्रिटिश ने बनाया। तो ब्रिटिश इंडिया ने 1867 में जब इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाया था तो उसका एक ही मोटिव था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले सारे अखबारों को बंद कर देना, सारी किताबों की छपाई को, बिक्री को, डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। क्योंकि उस समय प्रेस का जो रीज़न था, जो सेंटिमेंट था, या प्रेस की जो शुरुआत थी, जो पर्पस था प्रेस का, वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को ही बढ़ाना था। तो अभी ऐसे पर्टिकुलर एक्ट को कंटिन्यू किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी, कॉलोनियल माइंडसेट को लोगों के अंदर बढ़ाता। तो क्या लिए गए हैं इसके अंदर पॉजिटिव एक्शंस, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अभी फ़िलहाल जैसे कि अगर कोई भी एजुकेशन वेबसाइट है, आज वो अपने करंट अफेयर्स की खुद के पीरियडिकल्स निकालना चाहती है, हफ्ते, मासिक, 6 मंथली, कुछ भी, उसको अभी भी जिला अधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं घूसखोरी का भी एलिमेंट जो है वो सामने हमारे आ ही जाता है, क्योंकि प्रशासन बिना घूस लिए तो अनुमति किसी भी चीज़ की सरल रूप से नहीं देता। लेकिन अभी इसको सिंपल कर दिया गया है और बोला गया है कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोटिफाई करना ही काफ़ी होगा। यानी अगर मैं अपना एक हफ्ते भर का अगर एक करंट अफेयर्स का बुलेटिन छापना चाहता हूँ रंगीन पन्ने में, चमकते पन्ने में, तो मुझे
सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी को पत्र लिख के सूचना देनी है कि मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया है। उससे मुझे किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी भी तरीके से अगर आप इस तरह के बुक्स के, पीरियोडिकल्स के उसमें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप बात कर रहे हैं, या आपने परमिशन नहीं ली फिर भी आप प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, या आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, परमिशंस नहीं ली, तो आपको क्रिमिनल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, मात्र कुछ पैसे की पेनाल्टी लगा के बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी पर्टिकुलर एक्शन को कहते हैं किसी भी स्टैट्यूट को डीक्रिमिनलाइज करना, जब उसमें सेंटेंसिंग के प्रोविजंस को हटा के, जेल डालने के, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस को हटा के, जब फाइन को इंट्रोड्यूस किया जाए या फाइन से रिप्लेस किया जाए, तो इस पर्टिकुलर एक्शन को डीक्रिमिनलाइजिंग कहा जाता है। आर यू गेटिंग दिस? सो द मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी हैज बीन टू एंड क्रिमिनलिटी, improve ease of doing business, ease of living, and make efforts to decriminalize the colonial era statutes. पहले में 6 महीने तक की सज़ा अट्रैक्ट होती थी, अब हटा दिया गया है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कुछ वायलेशंस हैं जहाँ पे फाइनेंशियल पेनाल्टीज लगा दिया गया है और कन्विक्शन को हटा दिया गया है। दोनों में अंतर समझिएगा। फाइनेंशियल पेनाल्टी लगा दी, फाइन लगा दिया, बात खत्म, जेल नहीं जाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ एक क्रेडिबल एपेलेट मैकेनिज्म भी बनाया। पहले क्या था, अगर जिलाधिकारी ने आपको परमिशन देने से मना कर दिया तो उसके आदेश के अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके पास कोई प्रोविजन नहीं था कि आप किसी कोर्ट में जाके अपील कर दें। ऑब्वियसली लोगों के पास नेचुरल रेमेडी यही रहती थी कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन बोल के हाई कोर्ट के पास जाते रहे होंगे, लेकिन इससे हाई कोर्ट हमारी बर्डन हो रही है। हाई कोर्ट में अननेसेसरीली प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ बुक्स और इन सब के मामले आने लगे। आर्टिकल 19 का यूज करके लोग जाते थे, लेकिन क्यों इस चीज को ना फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, एक अलग से प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स के लिए एक पर्टिकुलर अपीलेट बॉडी बना दें, एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दें जो डिसीजंस के फटाफट डिसीजंस, आई मीन इन लोअर कोर्ट, लोअर अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट फटाफट फैसले सुना सके। तो इस अपीलेट बट सर, हाँ, वेल आई हैव वन ओपिनियन, जैसे हेड तो इसको चेयरपर्सन कर रहा है पीसीआई का, सो इज नॉट दैट गोइंग टू बर्डन लाइक उनका वर्कफोर्स, और कहीं ना कहीं वो फिर डिले होने लगेगा। इससे बेटर था कि कोई लाइक सेपरेट और डेडिकेटेड अपीलिएट कुछ बनाना चाहिए था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम एज सच यही सब देखना ही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर, जर्नल्स को, मैगजीन्स को ओवरवॉच करना, रेगुलेट करना ही काम है। वो इस पर्टिकुलर काम को ज्यादा बेहतर समझते हैं दैन अ जज। तो जो आपका एक्सपर्टीज है उसको क्यों ना इंक्लूड किया जाए। ऑलवेज रिमेंबर, अभी सोच के अच्छा लगता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा आप थॉट प्रोसेस दे रहे हो, ये बात अच्छी है, लेकिन जब भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर कोर्ट होती है तो उसके जो इश्यूज हैं वो टाइमली रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वहां पे उसी सब्जेक्ट डोमेन के। अगर सिविल कोर्ट में क्रिमिनल मामले जाने लग जाएं तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी हमारे देश की। वैसे ही हमेशा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक सब पर्टिकुलर कोर्ट होना बेहतर माना जाता है। जैसे इनकम टैक्स का अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, टेलीकॉम अथॉरिटीज का अपना एक अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था। आपने ये तक देखा है इन्वायरमेंट के मैटर्स के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बनाया गया है, उससे इन्वायरमेंट लिटिगेशन को बढ़ोतरी मिली है, ना ही उसमें घटत नहीं हुई है। इन्वायरमेंटलिस्ट और एनजीटी के सामने आ रहे हैं क्योंकि एनजीटी एक्सपर्ट बॉडी है। तो ये हमेशा फायदेमंद ही होगा कि अगर आप प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दें, उसी व्यक्ति के द्वारा वो चेयर किया जाए जिसको उसके बारे में पता है। हाँ, यहाँ पे आप ये ज़रूर कह सकते थे कि सर क्या
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अलाइंड बॉडी नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या इसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्या उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या वो डिसीजन सर फ्री फेयर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो क्या करना चाहिए? फिलहाल में यही बेस्ट है। Stressing the ease of doing business, largely the purpose is ease of doing business. Foreign publication, foreign magazines इंडिया में उतना रैम्पेंटली नहीं एंटर कर पाती, फॉरेन कॉमिक्स, बिकॉज उन सबको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाने में बड़ा ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल क्या होगा, इस तरह से फॉरेन पब्लिशर्स, फॉरेन मैगजीन्स, फॉरेन जर्नल्स इंडिया आएंगे। लोकल जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, लोकल लोग जो अपना पब्लिकेशन चलाना चाहते हैं, उनको भी प्रबल मिलेगा, बल मिलेगा कि वो भी सिंपली अपना धंधा जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसको चेक रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराने में पहले 2-3 साल लग जाते थे, अब स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन 60 डेज का कर दिया गया है। ये याद रखना है आपको, ये फैक्ट है। पहले टाइम पीरियड नहीं था कब तक आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कब तक परमिशन मिलेगी, और अब 60 डेज के अंदर अंदर परमिशन दे देनी है या डिनाई कर देना है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की क्या ड्यूटी है कि उसको फास्ट ट्रैक करना है प्रोसेस को, जहाँ पे पब्लिशर्स चाहे स्मॉल चाहे मीडियम हो, वो अपना पब्लिकेशन जो है स्टार्ट कर सकें। पब्लिशर्स को किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, दे जस्ट हैव टू प्रोवाइड वन इंफॉर्मेशन, दे जस्ट हैव टू इंटीमेट इट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड नो नीड टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन। इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करें तो ये 1867 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस की वाइस रॉयशिप के अंडर ये पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया था। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। क्लियर है? Are you clear or not? Are you clear? Yes, भैया, yes, Sir, भैया। so clear that it's all blank now. है ना? See, current affairs is so heavy. The current affairs is one segment which is so boring at times, interesting at times. Sometimes it's like सिर्फ पढ़ लो current affairs. Sometimes it's like लिखो current affairs तो ही याद होगा. It's a mixed bag of emotions, you can say. So the best way out, and it's also one aspect, one subject which creates a sense of fear in aspirants. Imagine your situation, CLAT 2024 के 15 दिन पहले, what was one area you were not so sure about? Current affairs. जी के। जितना भी पढ़ लो साला ख़त्म ही नहीं होता। लगता है कि दूसरे को मुझसे 2 फैक्ट ज़्यादा आते हैं, छूट रहा है। So the best way out is, the best lesson that you can have is not to repeat the same mistakes again. And the best way out to break this hysteria and the fear of current affairs is do it daily, or do it at least 3 days in a week. That is the bare minimum you should do. 3 days in a week, minimum. So today we have read a lot of news. We are still going on reading the news. These are also the index points. Do not see that sir ये PDF भेजेंगे तो पढ़ेंगे। आपकी कॉपी में आपने प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट को लिखा 1867 को, you have a task that today, tomorrow, day after tomorrow you have to read from your own sources, from your own Google search, and then this PDF, when shall be provided to you, will serve as a revision material already. You already have created index, have read it by your own, researched by your own, asked questions with respect to it, and now this PDF is also again फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आप खुद से रिसर्च करने जाइए, अपनी कॉपी में, अपनी हस्तलिपि में, अपनी हैंडराइटिंग में अपने फैक्ट्स को लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए जैसे आपको याद हो, समझ में आए। किसी को इमिटेट या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर्स में नोट मेकिंग की एक ऐसी आर्ट है जो बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। पर्सनलाइज्ड इन द सेंस, आई डोंट हैव टू राइट डाउन ऑल द फैक्ट्स बिकॉज आई रिमेंबर लार्जली द कॉन्टेक्स्ट। मुझे सिर्फ नाम, जगह और ईयर याद करने की ज़रूरत पड़ती है, बस। रेस्ट आई रिमेंबर द स्टोरी।
So I will try to avoid altu faltu ke information, additional information. I'll try to only write down what, when, where, who. You might be somebody different. You might be like, नहीं मुझे पूरी लाइन जब तक नहीं लिखो तब तक मुझे 15 दिन बाद कैसे याद रहेगा कि मैंने ये करंट अफेयर्स किस कंटेक्स्ट में लिखा था, ये सर्कल बनाया था, ये क्वेश्चन मार्क बनाया था, तो क्या था इसका मतलब. तो आप पूरी लाइन लिखिए. उसकी नोट मेकिंग का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा उस नोट का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको किसी और को पढ़ाना है. उस नोट का पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपके पास बेस मटेरियल टू रिवाइज है कि यार ये बेयर मिनिमम है, इस पे हम रिलाई करके जा रहे हैं. दैट्स इट. So try, because 15 days before, if you will get 30 days before even the examination, you will get anxious with respect to what to do for the current affairs. I would rather say that वो 30 दिन में आप और कुछ कर ही नहीं पाओगे, मॉक इफेक्टिवली लगा नहीं पाओगे, पैनिक रहेगा करंट अफेयर्स का. सो करंट अफेयर्स हैज़ टू बी डन डेली, टिट्स एंड बिट्स में एवरी डे. The very first question is, which among the following organizations releases international debt report? And look how they will make it confusing. They will say World Economic Forum. They will say Financial Action Task Force. So you will find इसमें भी finance है, इसमें भी economy है. Then they will say IMF. And then they'll say World Bank. So you'll find your debt is related to dollars and money, and all these bodies are related to dollars and money, and you'll get confused. So simply remember, International Debt Report is released by World Bank. It's an annual publication, right, where they try to assess the external debt of low and middle income countries of 122 countries. Now, when I say external debt, what do you get out of it? So the simple point is that external debt means countries' liability to pay back. Countries' liability to pay back can be attributed. Countries' liability to pay back can be attributed to individual countries, to world institutions like World Bank, like IMF, and to other multilateral development banks as well, like AIIB, ADB, NDB, so on and so forth. Now, if country is taking a loan, which that means that government is involved. And how does government generate money? By selling government securities. By selling government securities, which means it's a piece of document. What is a GSEC? Government security. It's a piece of document where, let's say, a country X is saying that this piece of document is for generating $1 million money, $1 million, and I shall give you back $1.5 million after the end of 25 years. So this is a promise that country A is making to anybody who is willing to provide country X with $1 million as of now. Now, this particular government security can be a long-term one, 25 years, 50 years, maybe more than that. This government security can also be short-term. So any country Y or any bank Y who has $1 million will take this particular promise paper from Y and provide money to whom? Country X. Y will be called as the purchaser of security, and government security, country X, will be called as issuer of government security or seller of government security. So if country X needs more money for infrastructure, for development and all of this, country X is likely to take loans
from different institutions, countries, multilateral development banks. But if countries X economy in this 25 years or the time period that they have committed to pay back falls down, the paying back potential of country X will depreciate, so much so that it can fall into a perpetual debt trap. That is what China does. It gives you so heavy loans at so high interest for such a short time period that you will never be able to pay back. But after all, if everybody knows that China is a debt trap, why do people still take money from China? Because to take money from other institutions, other countries, a lot of conditions are imposed, and China imposes practically no condition. It says पैसा चाहिए ले जा, जब आऊँगा मांगने तब चाहिए रहेगा. बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक और ऐसी चीज़ें पैसा देने के पहले भी कहती हैं कि ज़रा हम इंश्योर कर लें, तुमको देंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा. तो ये आपको थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक्सटर्नल डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किसी कंट्री में एक्सटर्नल डेट कैसे क्रिएट हो जाती है. भैया अगर कोई जैसे चाइना को अगर रीपे ना कर पाया एंड मतलब जितना हाँ. मतलब टाइम पीरियड में, तो उसके बाद फिर क्या एक्शंस लिए जाते हैं कंसेक्यूटिवली मतलब चाइना की तरफ से? चाइना की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. चाइना का राइट है कि वो राइट टू बी कॉम्पेंसेटेड प्रॉपरली है एज पर द एग्रीमेंट ओनली. तो चाइना उनसे मटेरियल एसेट्स के लिए बात करता है. चाइना उनसे कहता है कि फिर हमारी अपनी मार्केट खोलिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, आपके पोर्ट बताइए, आपका पोर्ट लाइए, आपका पोर्ट हम रख लेंगे, गिरवी रख लेंगे अपने पास. तो हम्बनटोटा पोर्ट जैसे श्रीलंका का चला गया चाइना के पास 99 ईयर्स के लिए. चाइना इस तरह की चीज़ें करता है. ज़मीन ले लेगा, कहेगा एक काम करिए, फिर आपके देश में हम हाईवे बना रहे हैं जो हमारे चाइना को अरेबियन सी से जोड़ेगा. यू वांट मनी, गिव अस द लैंड इन योर कंट्री. ओके भाई. So the question of external debt is even more because in low and middle income countries, why? These countries will never be able to pay back the heavy loans that they have already taken. It will allow stronger country, dominant country to come into picture and influence the economic policies of these countries. This can also subvert the political aspirations of these low and middle income countries. But the question comes that what after all are these low and middle income countries? What is the criteria on the basis of which high income countries or low income countries or middle income countries are separated from each other? So the criteria is pretty simple. The criteria is pretty simple, and the criteria is per capita income. So per capita income, wherever you earn less than $4,000, wherever you earn less than $4,000, wherever you earn less than $4,000, these countries are called as low income countries, LICs. Wherever you earn, sorry, just एक मिनट ऐसा है, बता देते हैं पहले. $1,200 से लेके $4,000 पर कैपिटा पर ईयर है. $1,200 से $4,000 पर कैपिटा पर ईयर है. ये होती हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है. $4,000 से $12,000 तक जो कंट्री में पर कैपिटा इनकम पर ईयर है वो है हाई मिडिल इनकम कंट्रीज. $1,200 के नीचे कोई भी है तो वो कंट्री को अंडर डेवलप्ड घोषित किया जाता है. $12,000 के ऊपर अगर कोई है तो वो हाई इनकम कंट्रीज आ जाता है. जितनी भी G7 कंट्रीज हैं दे आर हाई इनकम कंट्रीज. G20 में लो मिडिल इनकम कंट्रीज नहीं, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज आ जाती हैं. तो ये वाला जो आप ऐसे याद रखिएगा कि 0 से 1200, 1200 से 4,000, 4,000 से 12,000 और फिर 12,000 से प्लस.
ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ऐसे तो वर्ल्ड बैंक कहता है 107 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन्होंने अपने डेटा में 122 कंट्रीज़ हैं। यानी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो समय समय पे मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो जाती हैं, फिर लो इनकम कंट्रीज़ हो जाती हैं, वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। टोटल जो डेट है इन कंट्रीज़ का 443.5 बिलियन डॉलर्स है। लुक एट द अमाउंट 2022 में। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से इतने पैसे में से 1/3, 443 का 1/3 करें तो कितना हो जाता है? सो 334 एंड 36 27, यस, लार्जली 145 बिलियन डॉलर्स। 145 बिलियन डॉलर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरिएबल है, यानी 25 साल बाद तुमको चुकाएंगे तो 6 साल के परसेंट से चुकाएंगे। तो कह रहे नहीं, 6 साल फिक्स, 6% फिक्स नहीं है। अगर इकोनॉमी हमारी ख़राब हो गई तो 12% कर देंगे, सब बढ़िया चलता रहा तो 6% रहेगा। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, एक्सटर्नल शॉक लग सकता है आपको एक्सचेंज रेट की वजह से। जैसे अभी रिसेंटली देखने को मिला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया। इसका जैसे ही ये वर्ड टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी समझें, सुने, पढ़ें, तो अपने दिमाग में उसको रिप्लेस करें ऐसी टर्मिनोलॉजी से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि उसकी कंट्री में तुम अगर पैसा लगाओगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट तुमको देगी। यानी कि अगर हम, अमेरिका ने अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया है, यानी अमेरिका मुझको ये कह रहा है कि मेरी बैंकों में अपना पैसा रखो, मेरी बैंकों में अपना पैसा रखोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसा बुलाने की कोशिश कर रहा है फॉरेन से, ऐसे याद रखेंगे। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पे सरकार आपकी मदद करेगी, सरकार आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। होगा क्या उससे? उससे होगा ये कि अमेरिका का जो भी डॉलर इधर उधर फॉरेन कंट्रीज की फॉरेन बैंक्स में, फॉरेन कंपनीज में लगा हुआ है, वो सारा पैसा लोग वापस से अमेरिकन बैंक्स में डालने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के अंदर डॉलर आने लगेगा और बाहर की कंपनीज, कंट्रीज, बैंक्स के पास जो डॉलर पोजीशन थी वो कम होने लगेगी। लोकल करेंसी दूसरे देशों की घटने लगेगी डॉलर के कंपैरिजन में, और डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। ऐसे केस में अगर मान लीजिए लो मिडिल इनकम कंट्रीज ने अगर डॉलर में लोन ले रखा है और वो डॉलर आज अमेरिका अपनी बैंकों में वापस बुला रहा है, तो उस कंट्री का डॉलर के साथ कंपैरिजन होगा। तो $1 पे आज मान लीजिए 50 वैल्यू थी, उस टाइम पे हो सकता है कि $1 पे आपकी करेंसी के 100 यूनिट्स चले जाएं। तो परमानेंट डेट ट्रैप एग्रीवेट हो सकता है, क्योंकि 443 बिलियन में 145 बिलियन जो है वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का है। यानी 145 बिलियन का डेट तो आज देख रहे हैं, 2050 में अगर वॉर चलता रहा, ये सिचुएशन चलती रही, तो ये 145 बिलियन ही कहो 200 बिलियन बन जाए उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अब गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जिसने फॉरेन से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री से या किसी भी व्यक्ति से ऐसे पैसा ले लो जो आपका दोस्त नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज आप घर से बाहर निकलो और बगल में जो मर्चेंट कंपनी कह रहे हैं, जो जनरल स्टोर है, जनरल प्रोविजन स्टोर है, उसके दुकानदार से आप कह दो कि भाई मुझे 500 रुपये दे दो, मैं 1 हफ्ते बाद तुमको चुका दूंगा। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो 1 हफ्ते बाद तुमसे मुंह फाड़ के पैसे मांगेगा, वरना जो घर में माँ बाप ने पैसे दिए हैं राशन लाने के लिए, वो तुमसे मांग लेगा, एक तरीके से कहेगा ये तो तुम्हारी उधारी हो गई बेटा, अब और पैसे लेके आओ तब सामान देंगे। वो आपका दोस्त नहीं है। तो इस दौरान, इस हफ्ते में आप सबसे पहले क्या सिक्योर करने की कोशिश करोगे? वो 500 रुपए का नोट, ताकि वो व्यक्ति 1 हफ्ते बाद आप पे चढ़े ना। इसी तरीके से जो कंट्री कभी लोन लेती है फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बैंक से, वो हमेशा अपनी इनकम में वो उसके पे बैक करने वाले हिस्से को अलग करती रहती है। उससे होगा क्या, अगर मान लो पे बैक करने का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा तो कंट्री को ज़्यादा पैसा किनारे रखना पड़ेगा पे बैक करने के लिए,
और फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज जिसमें ऑलरेडी हंगर है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी क्या करती रहेगी, अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को चेंज करती रहेगी और उससे आम जनता भी इफेक्ट होगी। इसको डेट सर्विसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट सर्विसिंग। अपनी डेट को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा आप अलग रखते हो उसको डेट सर्विसिंग कहते हैं। डेट सर्विसिंग की वजह से गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे फोकस नहीं कर पाएगी। आप भी देख सकते हैं, आप अमेरिका की टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से पूरे लो मिडिल इनकम कंट्रीज से 127.1 बिलियन डॉलर्स वापस खींच लिए गए। यानी इन कंट्रीज में फॉरेन बैंक होगी, उसमें खाते खुले होंगे जिसमें डॉलर में पैसा जमा होगा। यूएस की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बाद क्या हुआ? लोगों ने इन कंट्री की बैंक से अपने पैसे उठा के अमेरिकन बैंक्स में डालना चालू कर दिया। आर यू फॉलोइंग इट? यस सर। तो वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 में इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को वार्न किया है। What is the meaning of external debt? It refers to the money borrowed from a source outside the country. It is a vital source for a country to generate revenue supplemental to the local revenue. It is usually paid back in the currency in which it is borrowed, which enables the debt vulnerability to exchange rate fluctuations. आपने आज अगर डॉलर में लोन लिया तो आप उसको बोलो अरे भाई रुपए में ले लो, ऐसा नहीं करेंगे, आपको उसको डॉलर में ही चुकाना है। तो जब आपने लोन लिया था तब $1 पे, लेट से आपने किसी से $10 लिए हैं, अमेरिका से $10 2023 में लिए, इस टाइम पे $1 पे आपको 83 रुपीज़ इकट्ठा करने थे। आपने $10 लिए तो आपको इसको पे बैक करने के लिए 830 रुपये इकट्ठा करने हैं। मान लो इसने तुम्हें 10% इंटरेस्ट रेट के साथ दिया, 10% इंटरेस्ट रेट के साथ दिया, और मान लो 10 साल के लिए दिया, 10 ईयर्स के लिए दिया। तो 2033 में तुम्हें कितना पैसा इसको वापस करना है? तो कितना लिया था तुमने? बेसिकली 830 रुपये। उसमें जोड़ के कितना देना रहेगा? 830 का 10%, दैट इज़ 83। यानी लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? दैट इज़ 8 और 3 ऐड करेंगे तो होता है 11, और ये हो गया 913 रुपीज़ तुम्हें वापस करने हैं। तुम्हारी इकोनॉमी में तुम 913 रुपये हमेशा अलग करके चलोगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, इंडिया में एक्सपोर्ट के कम होने की वजह से, इंपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से, जब 5 साल बाद, 10 साल बाद जब पैसा 2033 में वापस करना था, तब $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू कितनी हो गई? लेट से 100 रुपीज़ हो गई। तो तुमने तो अपने हिसाब से अनुमान लगा के रखा था कि हमको तो 913 रुपये ही देने हैं, पर अमेरिका ने कहा याद करिए आपको हमें 913 रुपये नहीं देने हैं, आपको हमें $10 देने हैं। तब आप देखोगे ओ $10 देने के लिए हमें 10 से 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अब हमें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो तुम्हारा 87 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया, ये तुम्हारी इकोनॉमी में फालतू का प्रेशर क्रिएट करेगा। गवर्नमेंट इस 87 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने के चक्कर में अपने इनिशिएटिव्स को, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को कम कर सकती है। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आया प्रेशर। आर यू फॉलोइंग इट? यस सर। इकोनॉमी इज डिफिकल्ट और इट्स इजी? लाइक काफी सब मिला जुला रहता तो फिर लाइक लॉजिकल है, पर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। टर्म्स का टर्म्स तो फंक्शनिंग समझ गए अगर आप, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। आम जर्रे में जो हम लोग इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं वही कंट्रीज भी यूज़ करती हैं। लेकिन अब जैसे एक्सटर्नल डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेलर ऑफ सिक्योरिटी, बायर ऑफ सिक्योरिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, डेट सर्विसिंग, ऐसे टर्म्स के मतलब समझ जाएं तो आधा काम तो आसान ही हो जाता है हमारे लिए। जैसे अभी तक सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही रहती है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होने से क्या फर्क पड़ता है। आप समझ में आने लगेगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या फर्क पड़ता है एक्सटर्नल डेट पे, एक्सटर्नल लोन्स पे, एक्सटर्नल फंडिंग पे। ठीक है, फॉलोइंग इट? यस सर। ओके।
इसके बाद वाली न्यूज़ थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट मी गिव यू द ब्रीफ. आई लाइक टू क्लोज द क्लास टुडे. अभी फ़िलहाल यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ आगे कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आईएमएफ ने अपने एक एनुअल आउटलुक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, हर कंट्री का असेसमेंट कराता है कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए. उसने इंडिया की इकोनॉमी को भी असेस किया और उसमें बोला कि इंडिया के पास जो डेट है, जो पर्टिकुलर इंडिया ने लोन ले रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए. इंडिया अपनी जीडीपी के हिसाब से जितना जीडीपी बनाएगा वो सब उसको डेट चुकाने के लिए देना पड़ जाएगा. 100% जीडीपी का डेट हो सकता है 2027-2028 तक. ऐसा आईएमएफ ने कहा है एडवर्स सर्कमस्टांसेस में होगा. ये आईएमएफ के आर्टिकल 4 के अंडर कंसल्टेशंस हैं. आईएमएफ की ट्रीटी जो है, जो आईएमएफ को बनाती है, उसके अंदर आर्टिकल 4 के साथ वो हर मेंबर कंट्री के साथ कंसल्ट करता है, उस मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात रखता है. तो हमारी आईएमएफ की इस रिपोर्ट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्वियसली रेफ्यूट किया है, एक्सेप्ट तो नहीं किया है, और किस तरह के ग्लोबल शॉक्स बोले हैं वो डिस्कस करना है. और एक एपिसोड आता है टेपर टैंट्रम 2013 का. क्या था ये टेपर टैंट्रम? ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड माना जाता है जहाँ पे यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ चुके थे. तो वो क्या था वो हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री कमेटी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फेम 2 नाम की स्कीम का सेकंड यू कैन से फंडिंग अनाउंस करी है और बोला है कि फेम स्कीम को कंटिन्यू कर दीजिए 3 साल के लिए. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी और फेम स्कीम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो ये लीगल आर्टिकल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे. क्वीन ऑफ मिलेट्स रायमती घिरुया, ये क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जानी जाती हैं, रायमती. ठीक है, और ये कई फार्मर्स को मिलेट्स अडॉप्ट करने में प्रमोट कर रही हैं, लोकल एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करवाने में हेल्प कर रही हैं. इनको क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, रायमती घुरिया. तो ये नाम याद रखना है. साहित्य अकादमी अवार्ड्स 24 भाषाओं में दिए गए भारत में, वो ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं, वो देखना है. नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल क्या है वो देखना है. फिर हमारे पास रैम्प प्रोग्राम फॉर एमएसएमई क्या अनाउंस हुआ है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी. नेशनल एमएसएमई काउंसिल के बारे में हमें पढ़ना है. और मालदीव्स ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराने से मना कर दिया है, भारत को मना कर दिया है कि आप सर्वे मत करिए. इसरो को 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ मिला. क्या है ये? बेंगलोर के एक एयरपोर्ट को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सैल प्राइज़ मिला एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. R21 मैट्रिक्स फॉर मलेरिया जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर करी है, उसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो इसी में सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पास्चराइजेशन के लुइस पास्चर, और सबसे पहली वैक्सीन बनाने वाले एडवर्ड जेनर, तीनों का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है. विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर 2023 को देखी गई, जब कहा जाता है कि दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है. तो क्या होता है ये सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स का फिनोमेना, वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है. लोकसभा ने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे झूठा वादा शादी का करना एक तरीके से डिसीटफुल प्रॉमिस ऑफ मैरी की तरह आएगा, और आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है. कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू commit marriage and later on denying to marry will entail punishment which can be extended up to 10 years. मॉब लिंचिंग को फाइनली डिफाइन किया है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्लैरिटी दी है, और टेररिज्म को भी पहली बार डिफाइन करते हुए यूएपीए की जो डेफिनेशन है टेररिस्ट की, उसको अडॉप्ट कर लिया है. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया गया है, जहाँ पे आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी दे रहे हैं कि आपने मेरे साथ ये कार्रवाई करी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, उसमें आपको जेल टर्म 1 साल की या कम्युनिटी सर्विस मिल सकती है, या दोनों भी मिल सकता है. किसी भी तरीके से खुद को बचाने के लिए आप इस तरह की धमकी नहीं दे सकते. हंगर स्ट्राइक्स को भी एक तरीके से पनिशेबल कराया गया है इसमें, क्योंकि हंगर स्ट्राइक भी रहता है. अनशन मरण मतलब होता है कि मर जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे, तो मेरी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड की एक तरीके से धमकी की तरीके से देखा जाएगा. ये काफ़ी स्ट्रेंज है. ये राइट टू प्रोटेस्ट को एक तरीके से रेगुलेट करता है, टेम करता है, लिमिट करता है. तो ये इसीलिए इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी
फेस कर रहा है। तो ये प्रेसिडेंट बिल का साइन भी मिल चुका है इसको, इसीलिए इसको थोड़ा विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में डिस्कस करना है हमें। और आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को हम यहीं पे रैप करते हैं। आई होप आपने चीज़ों को ध्यान से सुना होगा। गति भले ही मेरी स्लो है पर सॉलिड है। फैक्ट्स को इंडेक्सिंग करते हुए चलिए अपनी कॉपी में। फैक्ट नंबर 1 से लेके फैक्ट नंबर 30, 40, 50 आज की क्लास में जितने वन लाइनर फैक्ट्स आप लिख पाएँ आप वैसे लिखिए। याद रखिएगा आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको या तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है या वन लाइनर्स का इस्तेमाल करना है, बिकॉज द इंटायर पर्पस इज टू क्रिएट अ रिविजन मटीरियल, नॉट अ प्रिपरेशन मटीरियल, right? So that is the whole intent of the current affairs class. I hope you really were there through the session. Enjoyed it or not तो नहीं बोल सकता, क्योंकि mental torture तो है ही current affairs अपने आप में. I cannot say that you would have enjoyed the current affairs. Starting में enjoy किया होगा, but I can understand the sentiment. But please continue it on a daily basis. और मिलूंगा मैं आपसे फिर कल की क्लास में. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू भैया। Thank you, sir. All right, dear. Thank See you. you.